वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सतसंगी जन, सतगुरु जी की अपार रहमत नाल सतगुरु के चरणों विच जुड़ के बहन का समा नसीब होया। गुरु की प्यारी बाणी का कीर्तन आप जी ने सरवण किया। उहदी नदर उहदी बख्शिश तो बिना सतगुरु कहंदे उहदे नाल मेल नहीं हुंदा। जे असीं उहदी नज़र विच आ जाइए तां उहदी महरामत हो जाती है। वो सानू किरपा करके अपने चरनां नाल जोड़ लैंदा है। इसलिए सतगुरु कहंदे बंदे ने लखां कर्म कीते होण, कई तरह के धार्मिक कर्म, कई तरह की पूजा पाठ, जप तप, सिमरन साधना, उसने कई तरह के आचार व्यवहार धर्म के नाम ते करे होण, पर जे वो वाहिगुरू की निगाह विच नहीं आया, परमेश्वर की प्रसन्नता उन्होंने हासिल ना हुई, तो सतगुरु कहते उहदे सारे कर्म व्यर्थ चले जाते, उहदे सारे अडंबर सतगुरु कहते व्यर्थ बेकार, क्योंकि उन्हां अडंबरां नाल वो उस वाहिगुरू नूं प्रसन्न नहीं कर सकिया। असीं ये सारे कर्म उस वाहिगुरू दे लई तां कर रहे हैं, उस परमेश्वर लई। सतगुरु कहंदे नज़र करे मिलावा होई, जे वो नज़र कर देवे तां मेल हो जाता है। इसलिए उहदी नज़र तो बिना मेल बड़ा मुश्किल है। सतगुरु आखदे ने मेरा वो इक्को ही वाहिगुरू मेरा मालक मेरा पति है, उस तो बिना कोई होर नहीं। 100 मेरा एक दूजा नहीं कोई, मेरा वो सिर्फ वही एक मालक है, होर कोई दूसरा नहीं। इसनूं समझो, क्योंकि कहंदे सब यही ने कि असीं उस एक वाहिगुरू विच ही यकीन रखते हैं। उस एक परमेश्वर का मतलब उहदे तो बिना होर कोई भी नहीं, सिर्फ वही। उहदे तो बिना ना किसी नूं वेखदे आ, ना उहदे तो बिना कुछ सुनदे आ, ना उहदे तो बिना किस अगे झुकदे आ, ना ही उहदे तो बिना कोई होर दूसरा ख्याल आउंदा है। सतगुरु कहंदे 100 मेरा एक दूजा नहीं कोई। मेरा पति वो वाहिगुरू इक्को ही है, पर ओदी थां कोई होर नहीं ले सकदा। इस दुनिया विच बेअंत आदमी ने, बेअंत औरतां ने, पर पति एक ही हुंदा है, पत्नी एक ही हुंदी है, सब नहीं हो सकते। इसलिए एक नाल जुड़ के ही उस एक वाहिगुरू नाल जुड़िया जा सकता है।
ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਜੁੜਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਨੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਉਧਰ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਖਸਮ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਉਸ ਖਸਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਥਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਥਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ, ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਜੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੈਠਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਆਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਲ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਆ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਲੈ ਲੈ, ਆ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਆ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੰਗ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੰਗ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਮਿਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ।
जे साडे मन दे फुरने, साडे मन दे विचार ख्याल ये सब मिट जाण, बस ओदा ही एक ख्याल, ओदा ही एक विचार, ओदी ही एक सोच, ओदे ही फुरने, बस यही साडे मन विच रह जाण, तां मेल हुंदा है, तां सांझ पैंदी है। इस करके सतगुरु कहंदे 100 मेरा एक दूजा नहीं कोई। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਕੋਈ ਸਾਂਝ, ਕੋਈ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਲਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਪਤੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਪਤੀ ਜੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜੈਸੇ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜੈਸੇ, ਉਹਦੇ ਜੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਦਰ ਸਭ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਭ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਾਹਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਡਿਆਉਣਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਚੰਗੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਦਰ ਸਭ ਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਕਿ 100 ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੀਆਂ ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਨਾ ਸਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਏ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਬਸ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੰਦਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਸਜਿਦ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਕ ਫਿਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਪੇਵਕੜੈ ਧਨ ਖਰੀ ਇਆਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਨ, ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਖਰੀ ਇਆਣੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੜੋਤੀ ਹੈ, ਇਆਣੀ ਨਾ ਸਮਝ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
इस नूं हाले समझ नहीं आई। इस नूं उस पति दी, उस वाहिगुरू दी कोई समझ नहीं। पेव कड़ै धन खरी इयाणी, तिस सह की मैं सार ना जानी। मैं उस वाहिगुरू दी सार नहीं जानी, क्योंकि पेके घर दे विच ही उस वाहिगुरू दे बारे विच पता चलदा है। मां समझाउंदी है कि सहुरे घर दे विच जाके इवें रहीदा है, पति दे नाल इंज जीवन बतीत करीदा है, उहदी खबर मां दिंदी है। इत्थे मां तो भाव गुरु, गुरु सोझी दिंदा है उस वाहिगुरू दी। गुरु उस परमेश्वर दी सोझी दिंदा है, गुरु चज आचार दसदा है। इसलिए तो सतगुरु कहते गुरमिल चज आचार सिख तुझ कदे ना लगे दुख। कि जो अपनी मां कोलों चंगे गुण लैके आउंदे ने, जो लड़की अपनी मां कोलों, अपने बाप कोलों, अपने परिवार कोलों चंगे गुणां दी धारनी हुंदी है, उस नूं कदे दुख नहीं लगदा है जीवन विच। उन्होंने कदे दुख नहीं भोगना पैंदा सहुरिਆਂ ਦੇ घर जाके। सतगुरु कहते जिन्हें गुरु दे नाल मिल के, गुरु दी संगत करके गुणां नूं सिੱਖਿਆ होवे, ਚੱਜ आचार सिੱਖਿਆ होवे, उस नूं वाहिगुरू पति परमात्मा दे घर जाके कदे दुख नहीं भोगना पैंदा। सतगुरु कहते गुण मिल ਚੱਜ आचार सिख तुझ कदे ना लगे दुख। गुरु नाल मिल के ਚੱਜ आचार आउंदा है। पर उस वाहिगुरू दी, उस पति परमात्मा दी सतगुरु कहते अपने पेके घर दे विचों कोई खबर ही नहीं मिली। उत्थे अनजान ही रही, उत्थे अनजान ही रही, बिल्कुल ना समझ। ना परिवार ने दस्या, ना मां ने कुछ समझाया, ना बाप ने कुछ कहा, तो ना समझी विच ही अपना जीवन जिउंदी रही। तो जदों पेके घर तो सहुरे घर विच आई तो फिर उत्थे आके उसनूं कुछ पता ही नहीं, उन्होंने कुछ समझ ही नहीं, तो फिर वो दुख भोगदी है। ख्याल रखना इत्थे इस गल नूं समझना, साडा समाज ऐसा रहा, हुण ते हालात कुछ होर हो गए ने कि साडे समाज विच हमेशा लड़की नूं ही समझाया जांदा रहा कि सहुरिਆਂ दे घर इंज रहीदा है, इंज करीदा है। पर अज तक किसी ने एक कोशिश नहीं की कि अपने लड़के नूं भी समझाइए कि सहुरिਆਂ दे घर किवें जाईदा है। उहनूं कदे किसी ने नहीं अकल दित्ती, उहनूं कदे किसी ने समझाउण दी कोशिश नहीं की। अपनी ना मां ने, ना प्यो ने, ना ही किसी होर ने, कि सहुरिਆਂ दे घर जवाई बन के नहीं पुत बन के जाईदा है, कदे नहीं किसी ने कहा। पर हाँ धी नूं बहुत वारी कहंदे ने कि नूंह बन के नहीं धी बन के जाईदा है सहुरिਆਂ दे घर। साडा समाज बड़ा उल्टा है। अजकल ते हालात बिल्कुल वखरे हो गए ने, क्योंकि अजकल दी जनरेशन उन्हां दा हिसाब थोड़ा वखरा है, वो थोड़ी मॉडर्न है। इसलिए माँ बाप भी बहुता ध्यान नहीं दिंदे, ते बच्चों ने तो चलो ध्यान देना ही की है, क्योंकि असी भी समय के नाल नाल मॉडर्न होंदे जांदे ना, माँ बाप भी तो मॉडर्न हो रहे हैं ना। इसलिए अज वो धीआं पुत्तां नूं वो पहलां वालियां गल्लां लोग कहंदे ने, ये पुराणियां गल्लां हो गईयां जी, ये पुराणियां गल्लां हो गईयां, इन्हां गल्लां नूं छड्डो जी, हुण की फायदा इन्हां दा गल्लां नूं दस्सण दा, करन दा। इसलिए कोई अज दे समय विच धी पुत्त नूं समझाउंदा नहीं है। वो कहंदे जी जिवें तुहाडी मर्जी है तुसीं करो। पर कई बारी ना समझी कारण कई बारी बंदे गलत फैसला ले लेंदे ने ते फिर पछताउंदे ने, क्योंकि ये उम्र ऐसी हुंदी है कि इहदे विच बहुत समझ नाल कदम चुकना पैंदा है।
पर जिहड़ा बंदा जोश जोश विच जल्दबाजी विच फैसला ले लैंदा है वो कई बारी अपने रिश्ते खत्म कर लैंदा है। सतगुरु समझाउंदे, सतगुरु कहंदे इयाणी ना समझ कि पेके घर विच ना समझ ही रही, इन्हें समझिया ही नहीं कुछ, इन्हें जानिया ही नहीं, इस लोक विच ना समझ रही ते परलोक विच उस वाहिगुरू दे दर प्रवान किवें होवे। फिर असी किवें प्रवान होवांगे? असी प्रवान हो ही नहीं पांदे, सानू पता ही नहीं कुछ, सूझ ही नहीं। लोग अज दे समय विच अपने आप नू बड़ा सियाणा समझदे ने, पर उन्हां दी सियाणप तुसीं वेखो कदे, तुहानूं वेखण नूं मिलेगी विआहां शादियां ते, मरने परने ते किसी दी मौत हो गई उदों देखो कि उन्हां नूं कुछ समझ ही नहीं कि की करन। लोग दसदे ने भाई इंज करना है, आ करना है, आ फलानी रस्म करनी है, आ करना है, लोग जानण दा यतन नहीं करदे। गुरुद्वारे लोग आउंदे नहीं, ना उन्हां नूं कीर्तन सुनन नाल कोई दिलचस्पी है, ना कथा नाल, ना गुरबाणी दे पाठ नाल। फिर वो कदे कदाई गुरुद्वारे आउंदे ने, कदे कबार किसी दी मौत हो गई, अंतिम अरदास है, चलो अंतिम अरदास ते गुरुद्वारे पहुंच जाते हैं। किसी दा कोई विआह है तां वो विआह ते चलो ठीक है आनंद कारज है, 2-4 शरीर चले जाते हैं। ख्याल रखना कि मैं अगे भी कई बार बेनती की कि नौजवान लड़का लड़की जिन्हां दा विआह हुंदा है उन्हां नूं छोटे बच्चों वांगू समझाउणा पैंदा है, भाई इधर दी परिक्रमा करनी है, इंज खड़े होना है। हुण वो कदे गुरुद्वारे आए होण ते उन्हां नूं पता होवे कि की ढंग तरीका है, उन्हां नूं निआणिआं वांग छोटे बच्चों वांग दसना पैंदा, समझाउणा पैंदा कि भाई इंज परिक्रमा करनी, आ करना है, इंज मत्था टेकना है। पर अदरवाइज जे तुसीं देखो तो कहंदे जी साडे वर्गा सियाणा कोई नहीं, क्योंकि असीं यंग जनरेशन आ, नवीं जनरेशन आ, सानू बड़ी जानकारी है, फेसबुक व्हाट्सएप राहीं बड़ी जानकारी हासिल की है। इहदे पिछे माँ बाप दी भी गलतियां हुंदियां, क्योंकि वो लोग चाहुंदे ही नहीं है कि आनंद कारज दे वक्त कोई जावे नाल, कि आनंद कारज का समय चलो अपने रिश्तेदारां नूं, भैणां भाईआं नूं सारिआं नूं इकट्ठे करके लैके चलीए ना। वो कहंदे जी ठीक है कुड़ी दे मुंडे दे माँ बाप आ गए, 1-2 जी होर आ गए, चलो ठीक है हो गया काम, बस होर किसी की जरूरत नहीं। एक दफ़ा मैं रिश्तेदारी च किते विआह गया तो वो जिस कुड़ी दा विआह है उहदियां छोटियां भैणां वो जाना चाहुंदियां ने आनंद कारज ते, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ नहीं उन्होंने जानते, वो कहते जी इन्हां दा की काम उत्थे, इन्हां दा की काम, ये की करनगियां उत्थे जाके, इन्हां ने की करना है, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਜਦ ਦੇਖੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਜਾਣੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖੇਗਾ ਕੀ? जद कि छोटियां नहीं सन, वो 20-22 साल 25 साल तो उपर उन्होंने उम्र, वो कहते इन्हां दा की काम जी, इन्हां छड्डो परां। तो फिर बाद विच लोग एक्सपैक्ट करते हैं कि जी साडे बच्चे धार्मिक पता नहीं क्यों नहीं हुंदे, साडे बच्चे गुरबाणी नाल पता नहीं क्यों नहीं जुड़ते। फिर वो की जुड़न, क्योंकि असीं उन्हां नूं जुड़न दा मौका ही नहीं दिता कदी, असीं उन्हां नूं कदे कहा ही नहीं कि भाई चलो साडे नाल। जदों वो खुद कहंदे सी सानूं लै जाओ, असीं उदों उन्हां नूं लै के नहीं आए। जदों असीं उन्हां नूं ले जांदे आ फिर वो कित्थे आउण? जदों असीं उन्हां नूं लगाए ही सिर्फ पार्टियां विच आ, लगाए सिर्फ नच्चण गाउण वालीआं थाहां ते आ, तां फिर वो कीर्तन वाली थां ते किद्दां जाण? इसलिए आप दियां गलतियां करके बंदा अपने बच्चों नूं भी वो राहे पा लैंदा है। सतगुरु कहते अणजाणपुणा, ना समझी, ना समझी, वडेरी उम्र भी हो गई पर ना समझी नहीं गई बंदे दी, इसलिए अपने पेके घर विच अणजाण ही रही। पेवकड़ै धन खरी इयाणी, तिस शह की मैं सार ना जानी, मैं ओदी कोई सार ही नहीं जानी।
मैनू ਉਹਦਾ कुछ पता ही नहीं, ਉਹਦੀ कोई खबर ही नहीं कि पत्नी दे की करतब हुंदे ने, पति दे की करतब हुंदे ने। अपने फर्ज अपने करतब दोनों तो दोनों ही अणजाण। सतगुरु कहंदे इस संसार विच रह के बंदे ने वाहिगुरू की खबर नहीं जानी तो फिर पछताउंदा है, बाद विच फिर दुख भोगदा है। 100 मेरा एक दूजा नहीं कोई, नदर करे मेलावा होई। वो वाहिगुरू नदर करे तां उहदे नाल मेल हुंदा है। रहाओ साहुरड़ै धन साच पछाणिया। सतगुरु कहंदे कोई गल नहीं, जे पेके घर विच नहीं समझ आई ना, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਮਝਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, पर उन्होंने घर का काम ना करना उन्होंने करन लाया। छोटी सी सब तो, जदों उहदा विआह होया, उहदा आनंद कारज होया, विआह तो बाद उस लड़की का प्यो अपने कुड़मां नूं, अपनी कुड़म कुड़मणी नूं हथ जोड़ के बेनती करता है। वो कहंदा है कि मेरी धी ने कदे अपने पेकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई काम नहीं किया। ऐसा नहीं कि करना नहीं जानती, पर असीं इहनूं लाया नहीं। इसलिए मेरी तुहानूं ये बेनती है कि जे ये कुछ ना कर सके ना, इनू कुछ ना करना आवे, तो तुसी किरपा करके इनू दस के करा लियो। हुण ये तो हुई सियाणी गल। पर उस धी ने जदों वो अपने सहुरिਆਂ ਦੇ घर आई, उन्हें कदी अपने सहुरिਆਂ ਨੂੰ शिकायत का मौका नहीं दिता। उन्हें कदे ये प्रगट नहीं होने दिता कि उन्हें कदे कुछ करया नहीं। इसलिए सियाणा बंदा जिहड़ा हुंदा है, सियाणी धी हुंदी है, वो भावें उन्हें पहलां कदे कुछ ना करया होवे, पर वो करना जान लैंदा है। जदों सिर पैंदी है फिर बंदा सब कुछ सीख ही लैंदा है, समझ ही लैंदा है। सतगुरु कहंदे साहुरड़ै धन साच पछाणिया, कि सहुरे घर विच आके उन्हें सच नूं पछाण लिया कि इत्थे किस चीज़ नाल कदर पैनी है। सच नूं पछाणिया। साहुरड़ै धन साच पछाणिया, सहज सुभाए अपना पिर जाणिया। उन्हें सहज सुभाए ही अपने पति नाल सांझ पा ली, उस वाहिगुरू नूं जाण लिया, उसने परमेश्वर नूं जाण लिया, अपने पति नाल सांझ पै गई। क्योंकि जदों परिवार दे सारे जी खुश हो जाण कि हाँ साडी नूंह राणी बड़ी चंगी है, तो पति तो फिर आप ही प्रसन्न हो जाएगा। सतगुरु कहंदे जिन्हें सच नूं जाण लिया, उसने पति वाहिगुरू नूं जाण लिया। साहुरड़ै धन साच पछाणिया, सहज सुभाए अपना पिर जाणिया, गुर प्रसादी ऐसी मत आवे। गुरु की किरपा नाल ऐसी मत आउंदी है भाई। गुरु की किरपा नाल ये मत आउंदी है जिहदे राही बंदा सच नूं जाण लैंदा है। गुरु दे राही ये सोझी आउंदी है। गुर प्रसादी ऐसी मत आवे, तां कामण कंतै मन भावै। तां जाके कामणी पति परमात्मा दे मन नूं भाउंदी, तां वो वाहिगुरू दे मन नूं भाउंदी है जदों ऐसी मत आवे। क्योंकि मत नाल, सियाणप नाल, सूझ नाल वो अपने पति परमात्मा नूं प्रसन्न कर लैंदे। ख्याल रखना दोनों गल्लां ने इत्थे, प्रेम भी अते मत भी। इत्थे प्रेम भी है ते इत्थे सियाणप भी है। पर दुनिया कहती है कि प्रेम अन्ना हुंदा है, पर जदों धर्म के राह ते चलोगे तो इत्थे प्रेम अन्ना नहीं है, इत्थे अंध विश्वास नहीं है। अंध विश्वास मतलब अन्ना,
कि बिना देखिया विश्वास कर लेना, उन्होंने अंध विश्वास कहते हैं। इत्थे प्रेम का मार्ग है, इत्थे प्रेम है, तो प्रेम दे नाल इत्थे मत ज्ञान की अख है। इसलिए देख के वो बड़ा सोच समझ के कदम पुटदा है, पर प्रेम भी है तो सियाणप भी है। तो ये दोनों चीज़ों का सुमेल गुरु की मत नाल होया, गुरु की कृपा नाल होया। गुरु ने दसिया, गुरु ने सोझी दिती। आप पढ़ते ना बचन गुरु नानक साहब का, सतगुरु कहते पुछो जाए सुहागणी तुसी राविया किनी गुणी। तो अगों गुरु ने जवाब की दिता? सतगुरु कहते सहज संतोख शिंगारियां मिठा बोलनी। गुरु ने आ जवाब दिता कि सहज संतोख ते मिठ बोल, आ तीन चीज़ां धारण कर लै। सहनशीलता होवे, सहज मन का टिका होवे, मिठ बोलना होवे ते संतोख सबर। आज तेरे कोल 3-4 गुण ने ना, तां तू उस अपने प्रभु पति नूं हासिल कर ले, उहदी खुशी हासिल कर लवे। बस आही तो चाहिए सहनशीलता। अज दे समय विच सहनशीलता किहदे कोल है? ना पति कोई जरा जी गल सह पांदा है, ना पत्नी सह पांदी है। असीं किसी दी गल बर्दाश्त नहीं कर पाते। जिहड़ा बंदा किसी दी गल बर्दाश्त करनी जानदा है, उहनूं जज़ब करना जानदा है, वो सुखी रहिंदा है। इसलिए सतगुरु कहंदे गुरु दे कोलों ये मत लई सहनशीलता वाली, गुरु कोलों ये सोझी हासिल कीती गल नूं बर्दाश्त करन वाली। गुरु कोलों आया मैनू संतोख, गुरु कोलों मैनू हासिल होया सबर, गुरु कोलों हासिल होया मिठ बोलना सुभाव सहज। इसलिए गुरप्रसादी ऐसी मत आवे, गुरु की कृपा नाल ये मत आउंदी है, तां कामन कंतै मन भावै। जदों ऐसी मत आ जाती है तां ये मन ये इस्त्री उस वाहिगुरू नूं भा जाती, उस परमात्मा पति नूं भा जाती। कहत नानक भै भाव का करे श्रृंगार। सतगुरु कहंदे आ श्रृंगार करे। भै अते भाव, उहदा भै अते भाव प्रेम, आ श्रृंगार। बाहरला श्रृंगार जिहड़ा है ना, ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ सिर्फ उदों है ਜਦੋਂ किते बाहर जाना होवे। बस घर दे विच कौन श्रृंगार करके रहिंदा भाई? घर दे विच कोई श्रृंगार नहीं करता। ਜਦੋਂ किते पार्टी ते जाना होवे, बाहर अंदर किते जाना होवे ना, फिर लोग अपना आप माड़ा मोटा सवार लेंदे ने। अदरवाइज घर विच किहो जे रहिंदे ने सब नूं पता ही है। सतगुरु कहंदे घर दे विच जिहड़ा श्रृंगार है ना, वो भै ते भाव दा। सतगुरु का बड़ा प्यारा वचन है गुरु अंगद साहब महाराज का। सतगुरु कहते रुला टुंडा अंधुला क्यों गल लगे ताए। कि ऐसा बंदा जिहड़ा लंगड़ा लूला है, वो किवें अपने मालक दे ताए मतलब दौड़ के उहदे गल लग जाए, क्योंकि उहदे कोल ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिहदे नाल उहदा मेल हो सके। ना उहदे कोल अखां है, ना उहदे कोल हथ पैर ने, किवें वो दौड़ के उहनूं वेख के उहदे गल लग जाए। सतगुरु कहंदे एक तरीका है। इत्थे भाव है कि उहदे अखां विच उन्ना बल नहीं, उहदे बाहां विच उहदे हत्थां विच उन्ना बल नहीं, पर इत्थे सतगुरु कहंदे मैं दसदा तुहानूं उहनूं की करना चाहिए। सतगुरु कहंदे उस नूं चाहिए भै ते भाव। गुरु दे भै विच चलना, भै के चरण कर भाव के, उहदे भै विच रहना। इनू बना चरण पैर, भै के चरण कर, कर मतलब हथ, कर भाव के, कि जो भी तू सेवा करे ना अपने हत्थां नाल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ।
भै के चरण कर भाव के लोयन सुरत करे, ते अपनी सुरती नूं ही अपनियां अखां कर लै। नानक कहे सियाणीए इव कंत प्यारा होए। सतगुरु कहते इवें एक वो प्यारा वाहिगुरू मिल पैंदा है, इवें उस वाहिगुरू का मिलाप हासिल हो जाता है जे उहदे भै विच उहदे भाव विच इस तरीके नाल रहीए तां वो मिल जाता है। नानक कहत नानक भै भाव का करे श्रृंगार। सतगुरु कहते आ श्रृंगार कर, सद ही सेजै रवै पतार। तां फिर वो परमात्मा हमेशा अपने चरनां नाल जोड़ी रखदा है, वो हमेशा अपने गल लाई रखदा है, फिर वो अपने तो वख नहीं होण दिंदा कदे। जिन्हां दे कोल सिर्फ शरीर दा श्रृंगार है वो ओदी खुशी हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि शरीर दा श्रृंगार बड़ा झूठा है, ये बड़ा झूठा है। हाँ आकर्षित जरूर करदा है पर यह हमेशा नहीं रहिंदा। जिहड़ा श्रृंगार गुणां दा है वो हमेशा रहिंदा है। श्रृंगार तां कदे कदाई किसी ने देखना है, पर गुण तां रोज देखे जाने ने। सुचज्जा जीवन तां रोज वेख्या जाना है। लड़की की लैके आई है दहेज विच, ये तां एक दिन लोग देख लैणगे। शरीके नूं इकट्ठा करके दिखा दोगे कि भाई आ समान लिआंदा है, आ गहना गट्टा लिआंदा है, वो तां एक दिन देख के उहनूं रख दिता जाना है, साਂਭ दिता जाना है। पर ओदी बोलबाणी, ओदा वरतो विहार, ओदा सारिआं नूं अदब सत्कार देना, ओदा चज आचार, ये रोज देखिया जाना है, ये रोज देखिया जाना है। इसलिए ਉਹਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ रोज नहीं देखना, ਉਹਦੇ श्रृंगार ਨੂੰ रोज नहीं देखना, ਉਹਦੇ गुणां ਨੂੰ रोज देखिया जाना है। सतगुरु कहते ऐसा ही हर बंदे नाल है कि ਜਿਹੜਾ गुणां ਨੂੰ धारण करदा है गुरु दे दर ते ਉਹ प्रवान हुंदा है। ਜਿਹੜੇ कोल सिर्फ श्रृंगार है, ਜਿਹਦੇ कोल सिर्फ धर्म ਦਾ दिखावा है, ਉਹ ਉਹਦੇ दर ते प्रवान नहीं हुंदा। इसलिए जिन्हें इस तरह भै भाव का श्रृंगार किया, नानक सद ही सेजै रवै पतार, उन्होंने वाहिगुरू ने हमेशा अपने गल ला लिया, हमेशा लिए अपने हिरदे विच वसा लिया वाहिगुरू ने। सतगुरु रहमत करे ऐसा गुणां दा श्रृंगार सतगुरु रहमत करके सब नूं बख्शे। होईयां भुल्लां लिखेवां सतगुरु जी अते आप सरबत संगत बख्शण जोग, भुल्लां ना चितारदे होए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।